बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है MS वर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट डाउन द गिवन वर्ड्स इन द कलर एंड स्टाइल एज मेंशन्ड। बच्चों, हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है जो कलर्ड वर्ड्स दिए गए हैं और उसे स्टाइल करना है जैसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। डू यू नो you can change the color, style, writing style, border of the text you have written in MS Word too. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि MS Word में आप कलर, स्टाइल, राइटिंग स्टाइल और बॉर्डर सभी को चेंज कर सकते हैं? चलिए जानते हैं कैसे। In the previous class, you have learned about MS Word 2016, which is a word processor. It lets you type documents such as a letter or an essay on the computer. We also learned about selecting and editing text in Microsoft Word 2016. In this chapter, we will learn about text formatting. Using formatting features, you can give an entirely new look to your document. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग फीचर का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट को एक नया लुक दे सकते हैं। Recalling the word window. You can start MS Word 2016 by typing Microsoft Word 2016 in the search box on the start screen and then pressing the enter key. The word window will open on your computer screen with the components as shown on the next page. बच्चों, आप Microsoft Word 2016 को सर्च बॉक्स में जा करके एंटर की कर सकते हैं और स्टार्ट स्क्रीन पर उसे प्रेस करके एंटर की को प्रेस करके हम उसे खोल सकते हैं। उसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड विंडो खुल जाएगा। बच्चों, अब आ जाते हैं MS Word 2016 स्क्रीन पर। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, फिर दिया हुआ है फॉन्ट और पैराग्राफ जिसे कहा जाता है ग्रुप, रेफरेंसेस को कहा जाता है टैब्स और इसे कहा जाता है कर्सर। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटस बार और उसके बाद में दिया हुआ है टाइटल बार और बच्चों इसे कहा जाता है विंडो कंट्रोल बटन्स। बच्चों, इस पूरे को कहा जाता है डॉक्यूमेंट विंडो। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस स्पेस जहां पर फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग लिखा गया है, इस सब को कहा जाता है रिबन और जब हम स्क्रॉल करते हैं तो उसे कहा जाता है स्क्रॉल बार्स। बच्चों, अब आ जाते हैं फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट पर। Formatting means changing and arranging text in a document to highlight it or make it attractive. This can be done by changing font type, font size, font style, adjusting line spacing, margins, tab settings, text alignment and various other activities. बच्चों, अगर आप किसी चीज़ में चेंज, किसी डॉक्यूमेंट में चेंज लाना चाहते हैं तो आप चेंज ला सकते हैं फॉन्ट साइज़ को चेंज करके, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके या उसकी लाइनिंग को एडजस्ट करके। There are two types of formatting applied to MS Word. दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला है character formatting. It is applicable to the selected text. Paragraph formatting. It is applicable to the entire paragraph. जो character formatting है वो केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट करके किया जाता है और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। Formatting options of Word 2016 are available under the Home tab in Font, Paragraph and Styles group. बच्चों, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो है वो Word 2016 में Home tab, Font, Paragraph और Styles ग्रुप में मौजूद है। Character formatting. Character formatting can be done by using Font group of Home tab or using Font dialog box. To use any of the character formatting options available, the text has to be selected first and then only any change can be made to it. हम किसी भी टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अगर हमें कोई चेंज लाना हो तो हम चेंज को ला सकते हैं। Emphasizing text. The following features are used to emphasize the text in a document. B. Click on the bold button to make the selected text in boldface and other than the normal text. I. To make text in italics, click on the italics button. It makes the text slants towards the right. U. Select the text and click on the underline button. This button draw a line under the
text. X2. Select the text and click on the subscript button. This button places the selected text below the line. X2. Select the text and click on the subscript button. The button places the selected text above the line. बच्चों, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हम क्या करेंगे? हम बी को सेलेक्ट करेंगे. अगर हमें किसी पर्टिकुलर फॉन्ट को चेंज करना हो, अगर हमें उसे इटैलिक करना हो तो हम उस पर क्लिक करेंगे आई. बच्चों, अगर हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो हम क्लिक करेंगे यू. अगर हमें किसी टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करना हो तो हम उस पर X2 पर जाकर उसे क्लिक करेंगे. अगर हमें किसी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करना हो तो हम X2 पर क्लिक करेंगे. X2. Select the text and click on the superscript button. This button places the selected text above the line. बच्चों, अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हम B को प्रेस करेंगे. अगर हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक्स या उसके फॉन्ट को चेंज करना हो, उसके फॉन्ट को इटैलिक्स में कन्वर्ट करना हो तो हम I पर प्रेस करेंगे. अगर हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो हम यू को प्रेस करेंगे. और अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करना हो तो हम क्या प्रेस करेंगे? X2. और अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करना हो तो हम बटन दबाएंगे X2 का. बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमें बोल्ड टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है जिसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो चुका है, ये पूरा सेंटेंस बोल्ड हो चुका है. और इटैलिक्स टेक्स्ट, हमने इटैलिक्स टेक्स्ट में आई को प्रेस किया होगा तो इसमें जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये इटैलिक्स में कन्वर्ट हो चुका है. अंडरलाइन टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नीचे अंडरलाइन हो चुका है. और H2O ये हो चुका है सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है A² + B². टेक टिप. Use the following shortcuts: bold, Ctrl + B, italics, Ctrl + I, underline के लिए Ctrl + U, superscript, Ctrl + Shift + =, सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl + =. बच्चों, अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हम Ctrl + B को प्रेस करेंगे. इटैलिक्स में कन्वर्ट करना हो तो Ctrl + I, अंडरलाइन करना हो किसी टेक्स्ट को तो क्या करेंगे? Ctrl + U, सुपरस्क्रिप्ट करना हो तो क्या करेंगे? Ctrl + Shift + =, सबस्क्रिप्ट करना हो तो Ctrl + =. चेंजिंग फॉन्ट टाइप. अगर हमें फॉन्ट टाइप को चेंज करना हो तो द फॉन्ट टाइप refers to the look of the font in which the text characters are typed. The default font type in Word 2016 document is Calibri. To change the font type of the text, follow the given steps. अगर आपको फॉन्ट साइज को, फॉन्ट टाइप को अगर आपको चेंज करना हो, अपने मुताबिक चेंज करना हो तो उसे कैसे किया जा सकता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं. स्टेप 1. Select the required text and click on Home tab. Step 2. Click on the drop down arrow present next to font style box. Step 3. Select a desired font of your choice. The font type of the selected text will be changed. बच्चों, क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस भी फॉन्ट को हम चेंज करना चाहते हैं सबसे पहले उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे होम टैब पर. उसके बाद हम क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन जाएंगे फॉन्ट स्टाइल बॉक्स पर. उसके बाद हम अपने हिसाब से जो भी हमारा मन है, जो भी फॉन्ट हमें यूज़ करना है उस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा जो फॉन्ट है वो अब चेंज हो चुका है. चेंजिंग द फॉन्ट साइज. The font size controls the size of font, generally measured in points. The default font size in Word 2016 document is 11 points. To change the font size, follow the given steps. टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं जिससे हम फॉन्ट साइज़ को मैनेज कर सकते हैं. चलिए हम फॉन्ट साइज़ को कैसे बदल सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जान लेते हैं. स्टेप 1. Select the required text and click on the Home tab. Step 2. Click on the font size drop down arrow in the font group. Step 3. Select the font size from the displayed list. The font size of the selected text will change. सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है? हमें उस टेक्स्ट
जिसका हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है, पहले उसको क्लिक करना है, उसके बाद हमें होम टैब पर क्लिक करना है, फिर हमें फॉन्ट साइज पर ड्रॉप डाउन करना है कि हमें फॉन्ट साइज कितना चाहिए। अब देखिए, अब इसको मैनेज कीजिए। उसके बाद में एक बार जब हमने फॉन्ट साइज को सिलेक्ट कर लिया, फिर उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज है वो चेंज हो चुका है। चेंजिंग फॉन्ट कलर। Color of the text can be changed to draw attention towards headings or important information in a document. बच्चों, अगर हमें कलर चेंज करना है किसी भी फॉन्ट का तो वो कैसे कर सकते हैं? कलर चेंज हम इसलिए करते हैं ताकि हम हेडिंग्स या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम हाईलाइट कर सकें। टू चेंज द फॉन्ट कलर फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द होम टैब। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फॉन्ट कलर, ड्रॉप डाउन एरो। स्टेप 3, from the font color palette, select the required font color. Word applies color to the text. In this example, we have applied green color to the text. बच्चों, हमें क्या करना है? सबसे पहले उस टेक्स्ट को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद में होम टैब पर जाकर क्लिक करना है। फिर हमें फॉन्ट कलर पर जाना है और हमें कलर चूज करना है। जब हमने कलर एक बार चूज कर लिया, उसके बाद में हमें उसे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो वर्ड पे अप्लाई हो चुका है। इन दिस एग्जाम्पल हमने इसमें देखा कि हमने ग्रीन कलर इसमें चूज किया है। हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। हाईलाइटिंग अलाउज अस टू एम्फसाइज द टेक्स्ट एज वी वुड इफ वी हैड अ मार्कर। द स्टेप्स टू हाईलाइट टेक्स्ट आर एज फॉलोज। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द होम टैब। स्टेप 2, click on the text highlight color button arrow from the font group. A color palette appears. Step 3, select any highlighter color by clicking on it. The selected text will become highlighted. बच्चों, करना हमें क्या है? अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर होम टैब को क्लिक करना है और उसके बाद में आ जाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। बच्चों, अब उस पर हम जा कर के हाइलाइटर कलर जो है, जो भी हमें चूज़ करना है उस पर हम क्लिक कर देंगे और अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट था जिसे हमने सेलेक्ट किया था वो अब हाइलाइटेड हो चुका है। डू यू नो द हाइलाइटर फ्रॉम द टेक्स्ट कैन बी रिमूव्ड बाय क्लिकिंग ऑन द नो कलर ऑप्शन इन द टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर ड्रॉप बॉक्स। बच्चों, हम हाइलाइटर को हटा सकते हैं नो कलर ऑप्शन पर क्लिक करके, जो कि दिया होता है टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर ड्रॉप बॉक्स में। चेंजिंग टेक्स्ट केस। द चेंज केस button in the font group of the home tab gives you 5 options to change the case of the typed text. There are as follows. Sentence case. Capitalized the first letter of every sentence. Lowercase. Each letter of the text appears in the small letters. Uppercase. Each letter of the text appears in capital letters. Capitalize each word. The first letter of each word is capitalized. Toggle case changes the lowercase characters to uppercase and the uppercase characters to lowercase. बच्चों, सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, पहला लेटर होता है, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। लोअर केस में हम क्या करेंगे कि जितने भी लेटर के टेक्स्ट होते हैं वो सभी स्मॉल में जाते हैं। फिर अपर केस में क्या होता है कि जितने भी लेटर्स होते हैं टेक्स्ट के वो कैपिटल लेटर्स में जाते हैं। और जो कैपिटलाइज ईच वर्ड, जितने भी वर्ड है उन्हें हमेशा कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, जो फर्स्ट वर्ड है। और उसके बाद जितने भी लोअर केस हैं उनके कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर में चेंज हो जाते हैं। द स्टेप टू यूज द चेंज केस बटन आर एज फॉलोज। हम कैसे चेंज कर सकते हैं केस बटन को, आइए जानते हैं। स्टेप 1 है सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। स्टेप 2 है क्लिक ऑन द चेंज केस बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। स्टेप 3 सेलेक्ट अ रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। बच्चों, सबसे पहले हमारा जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद होम टैब पे जाना है, फिर फॉन्ट में जाना है और उसके बाद में हमें चेंज केस बटन में जाना है। उसके बाद जो भी हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन दिया गया है ड्रॉप डाउन मेन्यू में उसे सेलेक्ट करना है। बच्चों, टेक टिप, Shift plus F3 keys are used to switch between the different case after you have selected the text. बच्चों, Shift plus F3 keys को हम स्विच कर सकते हैं, जितने भी वहाँ पर सिलेक्टेड टेक्स्ट दिए गए हैं उनको
चेंज करने में। टेक्स्ट इफेक्ट्स। The text effects button allows to apply some wonderful effects to any text in Word 2016. Follow the given steps to apply the text effects. Text effects हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। स्टेप 1 है select the text and click on Home tab. Step 2, click on the drop down arrow next to the text effect option in font group. A list of text effect will appear. Step 3, choose the text effects you want to apply to a text. The text will appear in selected effect. बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, होम टैब पे जाना है, पहले सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, फिर जाना है होम टैब पर और उसके बाद जो फॉन्ट है उसमें जाकर के टेक्स्ट इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी हमें अप्लाई करना है उसको हम क्लिक करेंगे और हम एक बार सेलेक्ट होने के बाद में इफेक्ट जो है वो वहाँ पर दिखने लगेगा, अपीयर हो जाएगा। Copying formatting. If we have already formatted the text the way we want it and would like another portion of the document to have the same formatting, we can copy the formatting. This can be easily done in MS Word by using Format Painter option. The steps to use the Format Painter are as follows. जान लेते हैं। Step 1, select the text whose formatting is to be copied and click on Home tab. Step 2, click on the Format Painter button in Clipboard group. Step 3, the cursor changes into a brush. Now, drag the mouse over text on which you want to apply the formatting. The formatting will be copied to the text. बच्चों करना क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है होम टैब में जा कर के। पहले होम टैब में क्लिक करना है एंड देन उसके बाद हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो बटन आएगा फॉर्मेट पेंटर उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में जो कर्सर है वो ब्रश में चेंज हो जाएगा। अब हम उसे माउस को ड्रैग करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और उसके बाद में हमें जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना है उसे हम अप्लाई कर देंगे और जो फॉर्मेट है अब कॉपी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब the clear formatting button allows you to clear all the formatting you have applied to the text, leaving text in its original format. अब जो clear formatting button है उन्होंने आपको अलाउ कर दिया है कि आप फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पर। बच्चों टेक टिप पर आ जाते हैं। कॉपी फॉर्मेट, Ctrl+Shift+C, इसे आप कॉपी कर लेंगे। पेस्ट फॉर्मेट, Ctrl+Shift+V, इसे आप पेस्ट कर सकते हैं। ये एक इजी फॉर्मूला है। चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विद इन द मार्जिन्स। इन MS Word we can align the text in 4 different ways: left, right, center and justify. इन चारों वेज में हम इसे अलाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड इन MS Word, लेकिन MS Word में जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ अलाइंड है। बच्चों अब आ जाते हैं टेक टिप पर। लेफ्ट अलाइन, इसके लिए क्या करेंगे Ctrl+L। राइट अलाइन, इसके लिए हम करेंगे Ctrl+R। सेंटर अलाइन के लिए हम करेंगे Ctrl+E। जस्टिफाई के लिए हम करेंगे Ctrl+J। The steps to change the text alignment are: Step 1, select the text that has to be aligned. Step 2, on the Home tab in the paragraph group, click on the desired alignment button. बच्चों हमें क्या करना है कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ताकि वो अलाइन हो जाए। उसके बाद होम टैब पर जाके पैराग्राफ जो भी है उसको हम पूरा क्लिक करेंगे जितना हम चाहते हैं। अलाइनमेंट इज द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विद इन द मार्जिन्स, ये हो गया लेफ्ट अलाइंड। अलाइनमेंट इज द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विद इन द मार्जिन्स, ये हो गया राइट अलाइंड। अलाइनमेंट इज द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विद इन द मार्जिन्स, ये हो गया सेंटर अलाइंड। अलाइनमेंट इज द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विद इन द मार्जिन्स, ये हो गया जस्टिफाइड अलाइंड। अब आ जाते हैं एडिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग पर। MS Word provides features like bullets and numbering to show certain important points or list out steps for any action in a document. डॉक्यूमेंट में कोई एक्शन करना हो या कोई लिस्ट बनानी हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना हो, उसके लिए बुलेट्स और नंबरिंग दिया गया है।
A bullet is a small symbol used to mark each item in a list. A bullet can be given when the order of the point does not matter, that is unordered. In Word, the bullet is marked in the form of black dot by default. जो bullet है वो by default black dot के नाम से marked है. The steps to create a bulleted or numbered list are as follows. Step 1. Select the text to which you want to add bullets or numbers. Step 2. Click the Home tab. An ordered list or numbered list can also be used whenever you want to display the points in sequence. Step 3. Click on the bullet or numbering button in the paragraph group. Step 4. Select the list style of your choice. The paragraph formatting feature of Word 2016 can be used to set the appearance of text in a पैराग्राफ. बच्चों करना हमें ये है कि हमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना है जिसमें हम बुलेट्स या नंबर्स करना चाहते हैं अप्लाई. उसके बाद हमें होम टैब पर जाना है. उसके बाद जो भी वहाँ पर ऑर्डर्ड नंबर्ड लिस्ट दिया गया है जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो हम पॉइंट्स में सीक्वेंस में लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे. उसके बाद हम बुलेट और नंबरिंग को पैराग्राफ ग्रुप में जा कर के उस बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद में हम अपनी स्टाइल से जो भी हमें चूज़ करना है हम उसे चूज़ करेंगे. और उसके बाद में जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर है वर्ड 2016 का, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ में वो टेक्स्ट पर सेट हो चुका है. बच्चों अब आ जाते हैं टेक टिप पर. प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L टू अप्लाई बुलेट्स. बुलेट्स को अप्लाई करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद में मोर टू नो. टू फिनिश द लिस्ट प्रेस द एंटर की ट्वाइस. अगर हम किसी भी लिस्ट को पैराग्राफ को फिनिश करना चाहते हैं तो हम 2 बार एंटर को प्रेस कर देंगे. अब आ जाते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग पर. पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स. फॉलो दीज स्टेप्स टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग. स्टेप 1. सेलेक्ट द पैराग्राफ फॉर विच यू वांट टू चेंज द स्पेसिंग. स्टेप 2. Click on the paragraph dialog box launcher button. The paragraph dialog box will open. Step 3. Select the indents and spacing tab. Step 4. Specify the paragraph spacing in the before and after spin boxes under the spacing section. Step 5. Click on OK button. बच्चों करना क्या है हमें? पहले तो हम उस पूरे पैराग्राफ को जिसे हमें चेंज करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम पैराग्राफ में जा कर के उस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर बटन पर क्लिक करेंगे. फिर हम जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है अब वो खुल चुका है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब. इसके बाद हम जाएंगे पैराग्राफ स्पेसिंग पर. बिफोर एंड आफ्टर स्पिन बॉक्स से के अंदर जा कर के इसको हम क्लिक करेंगे. अब हम यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर देंगे. बच्चों अब आ जाते हैं चेंजिंग लाइन स्पेसिंग पर. लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ. टू चेंज लाइन स्पेसिंग फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. बच्चों अगर हमें किसी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, उसको जानते हैं. Step 1. Select the text and click on Home tab. Step 2. Click on the line spacing button in the paragraph group. A menu of spacing options appears. Step 3. Click on the required spacing option. The line spacing of selected text will be set accordingly. You can also set line spacing from paragraph dialog box. बच्चों सबसे पहले हमें जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उस पर क्लिक करना है, होम टैब पर जाना है और उसके बाद में जो लाइन स्पेसिंग बटन है पैराग्राफ में ग्रुप में दिया हुआ उस पर क्लिक करना है. और उसके बाद बच्चों हम जाएंगे स्पेसिंग ऑप्शन पर जो वहाँ पर दिया गया है उस पर. उसके बाद लाइन स्पेसिंग जो टेक्स्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम सेट करेंगे. अब हम देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो है वो अब सेट हो चुका है. एडिंग अ बॉर्डर. A border is an outline around a text or page in a document. The steps to apply border are as follows. अगर हम किसी पैराग्राफ में हमें बॉर्डर लाइन करना हो तो वो कैसे करना है? Step 1. Select a text or click anywhere in the text to which you want to add a border. Step 2.
Open the Home tab and in the paragraph group, click the border button, drop down arrow. Step 3. From the menu, select the Borders and Shading option. The Borders and Shading dialog box appears. Step 4. Click on the Borders tab. Step 5. Click on the box under the Settings section. Step 6. Select a line style for the border. Step 7. Click on down arrow of color and select a color for the border. Step 8. Click on down arrow of width and select a thickness for the borderline. Step 9. Click on the drop down list of apply to and select the paragraph option. Step 10. Click on the OK button. The border appears around the selected text. बच्चों चलिए जान लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर क्लिक करना है जिस पर हम ये बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद होम टैब पर जाएंगे और पैराग्राफ ग्रुप में जो बॉर्डर बटन में दिया गया है उसमें जाकर के हम उसे ड्रॉप डाउन करेंगे और ये हमने किया। फिर हम मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन जो दिया गया है, जो कि बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर कर रहा है, हमें उसमें जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर हम बॉर्डर्स टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेटिंग सेक्शन में जो बॉक्स दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। अब हम बॉर्डर के स्टाइल, लाइन स्टाइल जो दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जो एरो है उसको नीचे लाएंगे और हम कलर डिसाइड करेंगे बॉर्डर का। फिर हम ये देखेंगे कि उसकी विड्थ या थिकनेस बॉर्डर लाइन की कितनी होनी चाहिए। फिर हम जो पैराग्राफ ऑप्शन है उसमें जाकर अप्लाई टू करेंगे एंड देन अब हम देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है ओके का बटन। बच्चों जो बॉर्डर लाइन है सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अब अप्लाई हो चुका है। अप्लाइंग एन artistic border. You can also apply an artistic border to a page. To apply an artistic border, follow the steps given below. Step 1. Click on Page Border tab in the Borders and Shading dialog box. On the page border at the bottom, you will see a box called Art. Step 2. Click on the drop down arrow below the Art box. Step 3. Select a border style. Step 4. Click on OK button. बच्चों क्या करना है, अगर हम आर्टिस्टिक बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेज बॉर्डर टैब पर, फिर वहाँ पर बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स पर जाएंगे। फिर पेज बॉर्डर पर जाकर के बॉटम पर जाकर के हम देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आर्ट। फिर हम ड्रॉप डाउन करेंगे एरो को और आर्ट बॉक्स पर जाएंगे। फिर हम एक बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और अब आ गया है बच्चों ओके का बटन और अब हम ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। बच्चों अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट, मार्जिन, बुलेट, पैराग्राफ, बॉर्डर, स्पेसिंग। अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आई होप आज की जो क्लास थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।